So hi everyone, welcome again to my channel and पिछले वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज़ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, क्या होता है। और फिर हमने बात करी कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उस अंडर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टमिक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने लोकल कंप्लीट कर लिया था, हमारा सिस्टमिक नहीं हुआ था। हम सिस्टमिक करेंगे आज के इस वीडियो में। So without wasting any time, let's start with systemic route of drug administration. So as the name suggests, systemic. As the name suggests, whole system is involved. Which system is involved? Our circulatory system is involved. Our circulatory system is involved. Specifically, the drug transportation via circulatory system happens with the help of blood. So our blood is involved in entire this type of route of administration, which helps in the transportation of that particular drug from the site of administration till the site of action. So let's go a bit deeper into this, that what is different types of systemic circulation. सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंटेरल, अनदर वन इज पेरेंटरल, एंड पेरेंटरल। सो enteral, what is the meaning of enteral? Enteral basically suggests us, as the name suggests, intestine is involved. Intestine is involved in the administration of this drug. Basic of any drug, intestine is involved. All right. So for example, if we have our intestine starts from our buccal cavity up and ends where? Ends at rectum. Basically the ending of our intestine is anus, but still we count rectum as an ending because this is the last part from where the drug is administered in the body. All right. So buccal cavity ending up to the rectum. So this is our whole intestine. Anywhere in the any part whichever is involved in the route of in the administration of this drug within any part of our intestine, starting from buccal cavity ending up to the rectum, then this type of route of drug administration is known as enteral systemic route of administration. All right, enteral, that means our intestine is involved. Now we'll discuss enteral in detail as it covers various other subheadings. For example, it covers number 1, buccal. That means it is also a type of we just intake the drug via our buccal cavity. We place the drug there in our buccal cavity, and then the absorption takes place from there and reaches to the blood circulation. Another one is we'll discuss it in detail as well. Just please wait for a while. Buccal, then another one is sublingual. When we place any drug below our tongue, from where it reaches to the blood circulation via absorption, then this type of route of drug administration is known as sublingual. Third one, oral. We all know oral route of administration reaches up to the stomach whenever intake, like our tablet form. Then another one is rectal रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. बक्कल, सबलिंगुअल, ओरल, रेक्टल, ये सारे आते हैं हमारे एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि सिस्टमिक का एक पार्ट है, जो सिस्टमिक का पहला पार्ट है. नाउ अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बक्कल, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल सभी के बारे में. पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं पेरेंटल क्या होते हैं. पेरेंटल एज द नेम सजेस्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. पेरेंटल मतलब अदर देन एंटरल, दैट मीन्स अदर देन intestine. Apologies for the spelling.
other than intestine. That means intestine is not involved. other than intestine कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि हमारे स्किन हो गया, स्किन तो टॉपिकल में आ जाता है, बट स्किन के थ्रू, नीडल के थ्रू हमने ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया बॉडी के अंदर, नीडल के थ्रू हमने एडमिनिस्टर कर दिया इनसाइड द बॉडी। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग रूट्स आते हैं, जैसे सभी लोग डरते हैं, जैसे कि क्योंकि नीडल से सभी लोग डरते हैं, ठीक है। आईवी रूट, क्या हो गया, आईवी रूट, इंट्रावीनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्राथिकल रूट, ठीक है। इंट्राकार्डियक रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, ऑलराइट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इंट्रापेरिटोनियल रूट, ठीक है। एक होता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट, ठीक है। अनदर वन इज एपीड्यूरल, इसका एनेस्थीसिया लगता है जनरली प्रेगनेंसी के केस में, एपीड्यूरल एनेस्थीसिया एपीड्यूरल रूट के थ्रू लगता है, ऑलराइट। ऐसे ये रूट्स हो गए हमारे पेरेंट्रल रूट्स, जिसमें हम नीडल के थ्रू डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को काफ़ी भारी शब्द हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये सरपास करके डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब हम जरा इनकी थोड़ा सा, अगर हम इनका डिफरेंस देखें, दोनों रूट्स का, एंटरल और पेरेंटल का, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है इससे? थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएं और इसको देखें कि क्या होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई एंटरल में जब हमने दवाई खा ली तो क्या होगा भाई, पहले वो हमारे स्टमक में, लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ अनदर पेज। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं 2 मिनट का पॉज ले लेती हूँ यहाँ पे, आप स्टॉप करके देख लीजिए। ऑलराइट, सो अब हम अगर देखें, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। अगर हम देखें कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस, दोनों रूट्स में मेजर डिफरेंस है क्या आखिर, तो अगर हम देखें इन दोनों रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भाई जब हमने एंट्रल की बात कर रहे हैं, तो जब हमने ड्रग को इनटेक किया एंट्रल, फॉर एग्जांपल ओरल रूट से हमने इनटेक किया ड्रग को, भाई वो गई स्टमक में, वहाँ पे उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसका, देन डिसइंटीग्रेट होके वो ब्लड में गई, ठीक है, ब्लड में गई, फिर उसको भाई मेटाबॉलिज्म भी करवाना है अपना, लीवर में गई, मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद उसका एक्सक्रीशन हुआ, ठीक है, ब्लड में गई, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, सो ये हो गया हमारा एंट्रल रूट। मतलब कि उसको ब्लड में पहुंचने के लिए भाई उसको स्टमक में जाना पड़ता है, फिर उसको लिवर में भी जाना पड़ता है, फिर उसको एक्सक्रीशन भी करना पड़ता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, इतने सारे प्रोसेस को गुजरना पड़ता है। बट पेरेंट्रल में ऐसा नहीं होता, पेरेंट्रल में क्या होता है भाई, आपने कोई भी इंट्रावीनस इंजेक्शन ले लिया, इंट्रावीनस यानी कि वेन्स के थ्रू आपने नीडल ली, एक सिरिंज में नीडल के थ्रू आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया, अब वो ड्रग आपके स्टमक में तो गई नहीं, डायरेक्टली ब्लड में चली गई, कहाँ चली गई, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, अब वो पहुंच गई डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गई, भाई यहाँ पे आपका ब्लड बह रहा है, सॉरी काला ब्लड नहीं है, रेड ब्लड है, ये ब्लड है आपका ब्लड स्ट्रीम में, ये जो आपने ड्रग एडमिनिस्टर करी थी, यहाँ से नीडल के थ्रू आपने ड्रग एडमिनिस्टर करी थी, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए आपकी वेन है, यहाँ से ड्रग
सीधा एडमिनिस्टर हो गई। ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल जो है ड्रग के पार्टिकल्स हैं, ब्लड में मिक्स हो गए। ब्लड में जाके भाई अपनी साइट ऑफ एक्शन दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक तो होता नहीं है, ब्लड में जाके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में। अब पूरी बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, एंड देन वो अपना असर यानी कि अपना इफेक्ट it will show, reach up to any therapeutic threshold and then provide a therapeutic response. So this is the type of enteral difference between enteral and parenteral route of drug administration. अब एक एक करके हम बात करेंगे, पहले एंटरल की बात करेंगे, फिर पेरेंटल की बात करेंगे। एंटरल छोटा सा फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, पेरेंटल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है उसमें। सो हम उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एंटरल स्टार्ट करते हैं। होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार आप कमेंट्स में बता दीजिए, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसको दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके।